नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर जिला कांग्रेस मंत्री और नेताओं ने पत्रकारों से की बात। 85 वर्ष से अधिक आयु वालों को घर से मतदान की अनुमति दे। पात्र व्यक्तियों को 17 अप्रैल के भीतर फॉर्म 12D भरकर जमा करना चाहिए, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने कहा। कर्नाटक लोकायुक्त ने 13 अधिकारियों के यहां मारे छापे, मिली 35 करोड़ की संपत्ति। येडियुरप्पा ने इस बात से इनकार किया कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उन्हें सीएम पद से हटाने में भूमिका निभाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, ईडी की रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ी। प्रकाश अंबेडकर ने संजय राउत पर बोला हमला, बोले आपने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। अब समाचार विस्तार से। मंत्री ईश्वर खंडे ने आज शहर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट बुलाई, जिसमें जिले के कांग्रेस नेता मंत्री रहीम खान, विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली, भीमराव पाटिल, फिशरीज निगम के अध्यक्ष मल्लम्मा बी नारायण राव, पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल, पूर्व विधायक अशोक खेणी, पूर्व विधान परिषद सदस्य विजय सिंह, बीदर कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बसवराज जाप शेट्टी सहित कांग्रेस के बीदर लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार सागर खंडरे सहित अन्य नेता बात करते हुए कांग्रेस की योजनाओं के बारे में बताया, तो वही भाजपा और उनके नेताओं के विफलताओं को बताते हुए आरोप प्रत्यारोप लगाए। कैमरामैन पपोराज का कवरेज। ಮಾಧ್ಯಮ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಆದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ರವರೇ, ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ರವರೇ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೂಡಾರ್ವ ಮೇ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡರುಗಳ ಮಾನ್ಯ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು, ರಹೀಂ ಖಾನ್ ರವರು, BR ಪಾಟೀಲ್ ರವರು, ಖೇಡಿ ಅವರು, ವರ್ಲಿ ಅವರು, ಜಾಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಸುಭಾಷ್ ರಾಠೋಡ್ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಂದೆ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡರುಗಳ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ, ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು, ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿಯವರು, ಶ್ರೀ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವತ್ತು ಯುವಕ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ, ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ವರಿಷ್ಠರಿಗೂ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೂ ಹೃದಯದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತು ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನಾಗಿ, ಒಂದು ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು, ನನಗೂ ಕೋವಿಡ್ ತಗುಲಿದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಏನು ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕೃಷಿಕರು, ಅತ್ಯಂತ ಬಡವರು ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದಂಥವರ ದುಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು, ಯಾರು ನೋಡದೇ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರೆಮ್ಡೆಸಿವಿರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಳಿಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಏನು ಹಾಲಿ ಸಂಸದರಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತರ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಇವತ್ತು ಸಂಸದರಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಏನಿದೆ? ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಮಗೆಲ್ಲರದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಅದು ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಯೂತ್ ಇದ್ದಾರೆ,
ಮತ್ತು ಲಾ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಒಂದು 4-5 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಪಲ್ ಆಗಲಿ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಆ ಥರ ಸುಮಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ನಡೆಸಿರೋದು. ಅದು ಸುಮಾರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿ, ಈಸ್ ಎ MD ಆ ಥರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಲಾ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಯರ್ಗೆ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ತಿಳಿತೀರಿ ಯಾರೋ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. IAPS ಆಗಲಿ, IAS ಆಗಲಿ, ಸಡನ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏಜ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಎಷ್ಟು ಏಜ್ ಇದೆ, ಬಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಮತ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅವರು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಲ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಅವರು, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ, ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೋರು. ಆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಪರರ್ ಯಾರಿದ್ದಿದ್ದು? ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್. ನಾವು ನಿಮ್ದು ನಾಲೆಜ್ ಕೇಳಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಳ್ರಿ ಅವ್ರವರೇ ಕೇಳ್ಕೊಳತ್ತಾರ. ನಾನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಪರರ್ ಎವರ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬಂದು ರಾಜ ಆಗಿದ್ದು 18 years, ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು 33 years. ಬಟ್ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನೀವು ಡೋಂಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಯಂಗ್, ಅವ್ರು ಡೋಂಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹಿಮ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ತಾವು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡ್ನು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ನಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮೇಡಮ್ ರವರಿಗೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ವಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಇವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಯುವಕರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ಸೀನಿಯರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಭಯ ಇದೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಏನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ನಾನು ಈಸಿಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೇನು ವಿಷನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು, ಮತ್ತು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ CEC ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಅವರು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು 8 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ MP ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನು ಭಿನ್ನಮತ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವರು MP ಆಗ್ತಾರೆ. MP ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಯುವಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 100% ನಮಗೂ ಖಾತ್ರಿ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ. ನಾವು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ಒಳ್ಳೆ MP ಆಗ್ತಾರಂತ ನಾವು 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ MP ಮಾಡ್ತೇವೆ.
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव 2024 का कार्यक्रम पहले ही जारी किया जा चुका है, जिसके अनुसार 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और मानसिक रूप से विकलांग नागरिकों को मतदान के दिन घर से मतदान केंद्र तक लाने के लिए निःशुल्क ऑटो व्यवस्था, मतदान केंद्रों पर रैंप व्यवस्था, मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर व्यवस्था और मतदान केंद्रों पर कतार रहित व्यवस्था की जाती है। ये व्यवस्थाएं पिछले विधानसभा आम चुनाव में की गई थीं और ये सारी व्यवस्थाएं वर्तमान लोकसभा चुनाव में भी रहेंगी। भारत निर्वाचन आयोग ने 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों को मतदान केंद्र तक पहुंचने में कठिनाइयों होने पर घर से मतदान करने की अनुमति दी है। पिछले विधानसभा चुनाव में 584 मतदाताओं ने घर से मतदान किया था। घरेलू मतदाताओं की सूची तहसीलदार कार्यालय में उपलब्ध है। यदि इस सूची में शामिल मतदाताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति अर्थात 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक और विकलांग व्यक्ति घर से मतदान करना चाहते हैं तो उन्हें फॉर्म 12D भरकर संबंधित मतदान केंद्र स्तर के अधिकारी के माध्यम से दिनांक 17 अप्रैल 2024 तक जमा करना होगा। पात्र होने पर जमा किए गए 12D फॉर्म संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाएंगे। आवेदकों को घर से मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। कर्नाटक लोकायुक्त को बुधवार 27 मार्च को राज्य भर में मारे गए छापों में 35 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाब संपत्ति मिली। रिपोर्ट के मुताबिक टाउन प्लानिंग के सहायक निदेशक नागराजप्पा की आवास और संपत्तियों पर 11.13 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली। मगधी योजना प्राधिकरण रामनगर में इसमें 6 घर, 13 एकड़ जमीन, 25 लाख रुपए के गहने, 40 लाख रुपए के वाहन और 11.11 लाख रुपए नकद शामिल थे। भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी की छापेमारी आय से अधिक संपत्ति रखने के संदेह में 13 सरकारी अधिकारियों की संपत्तियों पर की गई। आरोपियों के कार्यालयों और उनके रिश्तेदारों के निवास सहित लगभग 60 स्थानों की तलाशी ली गई। यलहंका जोन के बीबीएमपी मुख्य अभियंता रंगनाथ एसपी के पास से 5.28 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति मिली, जिसमें 2 घर, 2 वाणिज्यिक परिसर, 2.5 एकड़ कृषि भूमि, 31.86 लाख रुपए के गहने, 36 लाख के वाहन और 24 लाख रुपए की सावधि रुपए की नकदी जमा शामिल हैं। जिन अन्य अधिकारियों की संपत्तियों की तलाशी ली गई उनमें रूपा एमडीसी, एक्साइज, उड़पी कृष्णागौड़ा, द्वितीय श्रेणी खाता सहायक, अगासनपुरा ग्राम पंचायत मंड्या जिले और शिवकुमार स्वामी कार्यकारी अभियंता, कारंजा प्रोजेक्ट भालकी, बीदर जिला शामिल हैं। ये तलाशी बैंगलोर शहर, उड़पी कारवार, मांड्या, मैसूर, कोडगु, धारवाड़, बीदर, कोलार, विजयपुरा, चिकबल्लापुरा और बेलगावी में की गई। लगभग 130 पुलिस अधिकारी इन ऑपरेशनों का हिस्सा थे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने इस बात से इनकार किया है कि उन्हें सीएम पद से हटाने में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की कोई भूमिका थी। येदियुरप्पा, जिन्होंने बुधवार 27 मार्च को बयान दिया था कि लिंगायत संत दिंगलेश्वर के आरोपों का जवाब दे रहे थे कि येदियुरप्पा को 2021 में पद छोड़ने के लिए कहने के भाजपा के कदम के पीछे प्रहलाद जोशी थे। येदियुरप्पा ने इस बात पर जोर दिया कि कर्नाटक बीजेपी के भीतर कोई असंतोष नहीं है। दावणगेरे में मतभेद थे, मैंने वहां जाकर मामला सुलझा लिया है। बेलगावी के भाजपा के उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार का विरोध था, लेकिन अब इसे शांत कर दिया गया है। कांग्रेस की स्थिति हरियक्कना चाली मने मंदिगिला जैसे है। सोनिया गांधी, उन्होंने मोदी को मौत का सौदागर कहा। खरगे ने मोदी को जहरीला सांप बताया। सिद्धरामैया भी एक वचन में बोलते हैं। इसके बाद अब मंत्री शिवराज ने कहा कि वह मोदी का समर्थन करने वाले युवाओं को थप्पड़ मारेंगे। ऐसे आरोप विजयपुर में भाजपा नेताओं ने लगाया। वह आज शहर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। विजयपुर से फिरोज शेख की रिपोर्ट। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी की रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उनकी 6 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही थी। आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन कोर्ट ने उनकी रिमांड की अवधि 1 अप्रैल तक बढ़ा दी। अब उन्हें 1 अप्रैल को 11:30 पे
कोर्ट में पेश किया जाएगा। लोकसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, मगर चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी दल और इंडिया अलायंस को प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी ने अलविदा कह दिया है। गठबंधन तोड़ने के बाद अब प्रकाश अंबेडकर ने ट्वीट के जरिए शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत पर हमला बोला। उन्होंने संजय राउत पर पीठ में छुरा घोंपने का भी आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट में संजय राउत से कई सवाल भी पूछे। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने ट्वीट की शुरुआत संजय कितना झूठ बोलोगे से किया। इसके बाद उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अगर आपके और हमारे विचार एक हैं तो हमें मीटिंग में क्यों नहीं बुलाते हैं। 6 मार्च की 4 सीजन्स होटल में हुई बैठक के बाद आपने हमारे किसी प्रतिनिधि को आमंत्रित क्यों नहीं किया। आज भी आप वंचित को आमंत्रित किए बिना बैठक क्यों कर रहे हैं। प्रकाश अंबेडकर ने अपने ट्वीट में संजय राउत पर गंभीर आरोप भी लगाया। उन्होंने लिखा, आपने तो सहयोगी होकर पीठ में छुरा घोंपने वाला काम किया है। हमें पता है आपने सिल्वर ओक्स में हुई मीटिंग में क्या रवैया लिया था। क्या ये बात सच नहीं है कि आपने हमारे खिलाफ अकोला में कैंडिडेट रखने की बात रखी। एक ऐसा रिश्ता बना रहे हैं आप। एक तरफ गठबंधन का भ्रम दिखा रहे हैं और दूसरी ओर हमें गिराने की साजिश कर रहे हैं। भारत के नए फाइटर जेट तेजस MK-1A का आज परीक्षण किया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बताया कि तेजस MK-1A विमान श्रृंखला का पहला विमान LA-5033 आज बेंगलुरु में आसमान में सफलतापूर्वक उड़ा। फाइटर जेट की 18 मिनट तक आकाश में उड़ता रहा। केंद्र सरकार ने 2021 में 83 उन्नत तेजस मार्क 1A जेट के लिए 46,898 करोड़ रुपए का भारी भरकम अनुबंध किया था। डिलीवरी मार्च 2024 से फरवरी 2028 के बीच की जानी है। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 2 तेजस स्क्वाड्रन, फ्लाइंग टाइगर्स और फ्लाइंग बुलेट्स हैं, जिनमें एक अब दक्षिण पश्चिम सेक्टर में तैनात है। फाइटर जेट तेजस MK-1A में पिछले विमान की तुलना में कई एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। सांसद नवनीत राणा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। नवनीत महाराष्ट्र की अमरावती जिले से सांसद हैं। इसी बीच अमरावती लोकसभा सीट से भाजपा ने नवनीत राणा को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में नवनीत राणा की नाम की घोषणा के साथ ही अमरावती में जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। कई स्थानों पर आतिशबाजी की गई और मिठाइयां बांटी गई। इसके बाद नवनीत राणा का काफिला अमरावती से नागपुर की ओर चल पड़ा। नवनीत राणा के भाजपा में शामिल होने के साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि नवनीत राणा की हिंदुवादी नेता और फायर ब्रांड नेता के रूप में पहचान है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के कार्यालय में प्रवेश की सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवारों की घोषणा के बाद नवनीत राणा ने राष्ट्रीय युवा स्वाभिमानी पार्टी की सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में नवनीत राणा भाजपा में शामिल हुई। इस दौरान बावनकुले ने नवनीत राणा को भगवान हनुमान की मूर्ति भेंट की। नवनीत राणा ने इसके बाद आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विकास की संकल्पना है, उससे प्रेरित होकर भाजपा में प्रवेश किया है। इस बार 400 पार का जो नारा है, उसमें एक सीट अमरावती की होगी। एनडीए इस बार 400 पार करेगा। निर्वाचन आयोग पात्र मतदाताओं को मताधिकार का उपयोग करने के लिए बूथ तक लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। वहीं कई मतदाताओं को पीठासीन अधिकारी के समक्ष पहचान सत्यापित करने के बाद भी मतदान से इनकार के अपने अधिकार की जानकारी नहीं है। यह अधिकार नोटा उपरोक्त में किसी को वोट नहीं से अलग है और चुनाव कराने की नियमावली 1961 के नियम 49O के तहत इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रावधान में बताया गया है कि कोई मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद भी मतदान से दूरी बना सकता है। नोटा विकल्प मतदाताओं को किसी भी प्रत्याशी में विश्वास नहीं जताने का अवसर देता है। वहीं मतदान से इनकार का विकल्प उसे मतदान प्रक्रिया से
दूर रहने का मौका देता है। 49 ओ खंड पीठासीन अधिकारी को निर्देश देता है कि जब कोई मतदाता अपनी पहचान सत्यापित होने के बाद भी बूथ के अंदर मतदान करने से इनकार कर देता है तो अधिकारी फॉर्म 17A में इस संबंध में टिप्पणी डालेंगे और मतदाता की हस्ताक्षर कराएंगे या अंगूठे का निशान लगवाएंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों को दर्ज करने और अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की प्रगति की निगरानी के लिए एक नए डेटाबेस की शुरुआत की है। इसे कई खेमे में खलबली मच गई है। ताजा मामले में अभी इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र के बैनर तले काम करने वाले एक ऐसे ही समूह पर हमास के साथ युद्ध में शामिल होने का आरोप लगाया था। भारत ने जो डेटाबेस तैयार किया है वह दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों के अपराधों के खिलाफ कार्यवाही के लिए है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की दूत रुचिरा कंबोज ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत इस मामले में जवाबदेही तय करने की पुरजोर वकालत कर रहा है। मंगलवार को डेटाबेस की शुरुआत की घोषणा भारत के नेतृत्व वाले ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स GOF की एक उच्च स्तरीय बैठक में की गई। कंबोज ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, शांति और सैनिकों के खिलाफ अपराधों को दर्ज करने और अपराधियों को जवाबदेह ठहराने में प्रगति की निगरानी करने के लिए तैयार एक नए डेटाबेस की शुरुआत की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यमन में हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में जहाजों पर हमला करना जारी रखा है, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में बड़े पैमाने पर हूतियों पर एयर स्ट्राइक की है। इन सब के बावजूद यमन ने मध्य पूर्व जलमार्ग में जहाजों को निशाना बनाना जारी रखा है। अब एसोसिएटेड प्रेस AP द्वारा लिए गए उपग्रह चिन्हों के विश्लेषण से पता चलता है कि उस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के प्रवेश क्षेत्र में एक नई हवाई पट्टी बनाई जा रही है। इस रहस्यमयी हवाई पट्टी को लेकर किसी देश ने भी सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई दावा नहीं किया है कि अदन की खाड़ी के प्रवेश स्थल के पास हिंदू महासागर क्षेत्र में अब्द अल खुरी द्वीप पर कोई निर्माण कार्य हो रहा है। गाजा में सर्जिकल स्ट्राइक के विरोध में हुतियों ने लगातार लाल सागर में मिसाइल और ड्रोन से हमला करना जारी रखा है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिला कांग्रेस मंत्री और नेताओं ने पत्रकारों से की बात। 85 वर्ष से अधिक आयु वालों को घर से मतदान की अनुमति दे। पात्र व्यक्तियों को 17 अप्रैल के भीतर फॉर्म 12D भरकर जमा करना चाहिए, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने कहा। कर्नाटक, लोकायुक्त ने 13 अधिकारियों के यहां मारे छापे, मिली 35 करोड़ की संपत्ति। येडियुरप्पा ने इस बात से इनकार किया कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उन्हें सीएम पद से हटाने में भूमिका निभाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, ईडी की रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ी। प्रकाश अंबेडकर ने संजय राउत पर बोला हमला, बोले आपने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।